اور ہمارا ٹاپک جیسے کہ پاسٹر جی نے بتایا ہے جیزس امنگ دا 7 چرچز، اور اس کا ترجمہ ہے کہ یسوع 7 کلیسیاؤں کے درمیان۔ اور 7 کا عدد آپ کو پتا ہے کاملیت کا عدد ہے۔ 7 کا عدد پوری دنیا کو کہ خدا کا پاک روح یسوع مسیح پوری دنیا کے اندر کام کرتا ہے۔ اور ہم نے جو 7 کلیسیاؤں کو دیکھا اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح 2000 سال پہلے یوحنا جو کہ یسوع مسیح کا پیارا شاگرد تھا، اس سے پیار کرتا تھا، ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں 40 دن کے بعد وہ آسمان پر جاتے ہیں اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گا۔ اور اب یوحنا انتظار کرتا ہے، یسوع مسیح کی گواہی دے رہا ہے، اور اس گواہی کی پاداش میں، اس گواہی کی وجہ سے وہ بتاتا ہے کہ میں کس جزیرے پر، کس ٹاپو کے اندر تھا، پتموس کے اندر، یعنی قید مجھے کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ اور اس نقشے میں آپ یہ دیکھتے ہیں اور یہاں پر پتموس کا جزیرہ بھی دیکھتے ہیں۔ ہم ایک دن یہاں پر آپ بڑے ٹی وی کو دیکھیں گے، میں خداوند میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ جو چیزیں ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی وہ جلد خداوند مہیا کرے گا۔ تو یہاں پر پتمس کا جزیرہ ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا ایک رویا دیکھتا ہے، ایک ویژن دیکھتا ہے، اور اس ویژن میں دیکھتا کیا ہے؟ اس ویژن میں یسوع مسیح کو دیکھتا ہے، اور یسوع اپنی 7 کلیسیاؤں، 7 کا مطلب جہان بھر کی کلیسیاؤں میں وہ پھرتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں، اور اسے بتایا جاتا ہے یوحنا کو کہ یہ جو 7 چراغ دان تو دیکھتا ہے، سونے کے 7 چراغ دان 7 کلیسیائیں ہیں، اور جو خداوند یسوع مسیح کے جو تو میرے ہاتھ میں ان ستاروں کو دیکھتا ہے، یہ ان کلیسیاؤں کے خادمین ہیں۔ یہاں پر لفظ آیا ہے آنگیلوس ہیں، اور آنگیلوس جو ہیں خدا کے خادمین اور فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ خدا کے تخت کے سامنے اگر 7 روحیں ہیں، جسے ہم پاک روح کی معموری کہتے ہیں، فلنس آف دا ہولی اسپرٹ کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہم 7 فرشتے بھی جو مقرب فرشتے ہیں، جو ہمیشہ خداوند کا فیس اس کے سامنے دیکھتے ہیں، وہ بھی اس کے سامنے ہیں۔ تو خدا کے فرشتے اور خدا کے خادمین دونوں خدا کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ پاک روح کے درمیان گھومتا ہے، وہ اپنی 7 کلیسیاؤں کے درمیان گھومتا ہے۔ یہاں پر ہم پاک روح کو اور کلیسیاؤں کو جڑا ہوا دیکھتے ہیں، ایک دیکھتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ پاک روح کو بھی آگ کے شعلوں کی صورت میں دکھایا گیا ہے، چراغ دان کی صورت میں دکھایا گیا ہے خداوند کے تخت کے سامنے، اور کلیسیا بھی جو ہے وہ ایک چراغ دان ہے دنیا میں۔ ہاللیلویا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم کلیسیا کا جو ہیڈ ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے تم میرا بدن ہو۔ جب خداوند لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ یسوع کو دیکھتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور ابھی ہم نے جتنی کلیسیاؤں کے بارے میں سنا اس میں پہلے نمبر پر افسس کی کلیسیا تھی، اور افسس کی کلیسیا کو خداوند کیا پیغام دیتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ کہ تیری پہلی سی محبت کہاں رہی؟ ہاللیلویا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی کلیسیا تھی جس کے بارے میں خداوند پیغام دیتا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند افسس کی کلیسیا کو کچھ تعلیمات دیتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے سیکھ لیا، ان کی کچھ کمزوریاں بیان کرتا ہے، اور ہم پھر اگلی کلیسیا کو دیکھتے ہیں۔ اگلی کلیسیا سمرنے کی کلیسیا ہے، اور خداوند سمرنے کی کلیسیا کو کیا کہتا ہے؟ کس کو یاد ہے؟ کہ خداوند ان کو کہتا ہے کہ دیکھ کے کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ خداوند ان کو کہتا ہے کہ تو جو مصیبت تو دیکھ سہ رہا ہے میں اسے جانتا ہوں،
मैं तेरी मुसीबत से वाकिफ हूं, जो दुख तू देख रहा है मैं उससे भी वाकिफ हूं, और तू मेरी खातिर और दुख सह। तो खुदावंद इस कलीसिया की तारीफ करता है क्योंकि ये मसीह की खातिर दुख उठाती हैं। हालेलुया। आज पास्टर साहब मुझे कह रहे थे कि मेरी बैक में थोड़ा दर्द है, तो मैंने पास्टर जी से यही कहा कि पास्टर जी हमें दुख उठाकर खुदा की बादशाही में जाना जरूर है, क्योंकि इब्लीस खुदा के लोगों को ज्यादा तंग करता है। याद रखिए, अगर आप इस चीज को महसूस करें तो वो दूसरे लोगों तो उसके हाथ में है, वो उनको नचा रहा है, लेकिन इब्लीस की ये कोशिश होती है कि मैं खुदावंद के लोगों को तंग करूं, उनको सताऊं। तो जो यीशु मसीह के नाम की खातिर सताए जाते हैं उनके लिए एक बड़ा अजर है। तो स्मुरने की कलीसिया को खुदावंद उनकी हिम्मत अफजाई करता है कि तुम मेरे नाम पर अड़े और खड़े रहो, और तुम अगर आखिर तक बर्दाश्त करोगे तो तुम जिंदगी का ताज पाओगे। और उसके बाद स्मुरने की कलीसिया के बाद हमने परगमस की कलीसिया के बारे में सीखा। तो परगमस की कलीसिया के बारे में क्या पैगाम था? ये वो कलीसिया थी जो कंप्रोमाइज कर रही थी। किसके साथ? खुदा के साथ और दुनिया के साथ। इसने ये आधे आधे थे, ना मैं आधा ना मैं पूरा, ठीक है। तो ये आधी दुनिया में, एक टांग दुनिया में और एक टांग जो है वो खुदा के पास है। तो ये दो कश्तियों में सवार हैं और ये मिक्सअप हो रहे हैं। इन्होंने कलीसिया के अंदर जो है वो बुत परस्ती को लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ढीले पड़ रहे हैं, ये गलत टीचिंग को अलाउ कर रहे हैं। तो परगमस की कलीसिया को भी खुदावंद तंबीह करता है, उनको कहता है कि तुम अपनी जगह पर वापिस आ जाओ, अपने मुकाम को ना खो। और मेरे अजीजों, फिर हमने इसके बाद हमने ये देखा कि अगली कलीसिया जो थी वो थुआतीरा की कलीसिया थी, और थुआतीरे की कलीसिया को खुदावंद कहता है कि ये कलीसिया जो है वो करप्ट हो चुकी है, ये कलीसिया जो है वो मेरे नाम पर एक धब्बा है। ये नाम की तो कलीसिया है, लेकिन ये धब्बा है खुदावंद यीशु मसीह की कलीसियाओं में से। यानी यहां तक जो थी पहले कलीसिया जो थी वो अपनी मोहब्बत को पहली कलीसिया ने थोड़ा सा कम कर दिया, दूसरी ने अब वो अड़े रहे, खड़े रहे, यीशु के नाम पर सताए जाते रहे, लेकिन अपने आप को बेचा नहीं। तीसरी कलीसिया जो है वो कंप्रोमाइज होने लगी दुनिया के साथ, और अब वो पूरी कंप्रोमाइज कर चुकी है। अब वो करप्ट कलीसिया कहलाती है, और इस कलीसिया को थुआतीरा का नाम दिया जाता है। और चूंकि मैं डिटेल में इस पर नहीं गया और ना जाऊंगा, क्योंकि अभी हमने अगली 3 कलीसियाओं के बारे में सीखना है, और फिर खुदा सारदिस की कलीसिया को पैगाम देता है, और इसको हम डिटेल के साथ जो है वो सुनेंगे। और मैं भाई दलजीत से कहूँगा कि वो इस हवालों को पढ़ने में मदद करें। और याद रखें एक बात, ये कलीसियाएं जो भी 4 कलीसियाएं पड़ी, ये जिस जिस जगह पर लोकेट करती थी उस जगह का, उन लोगों का इनके ऊपर बड़ा असर हुआ। तो याद रखें, जिन लोगों में आप रहते हैं उन लोगों का आप पर बड़ा असर होता है। तो आगे भी जो कलीसियाएं हैं हम देखेंगे कि ये जिस जगह पर लोकेट करती थी, जिस जगह पर थी, वहाँ के लोगों के हिसाब से इनकी जिंदगियां भी, इनकी खिदमत भी बदलती गई। और हम सारदिस की कलीसिया को पढ़ेंगे, और ये 3 बाब की पहली आयत में हमें मिलता है। और अगर आपको नहीं पता तो ये कलीसियाएं आज भी मौजूद हैं, ये कोई ख्याली कलीसियाएं नहीं थी। आज भी अगर तुर्की के इलाके में, आप में से कौन तुर्की गया है? अदील भाई तुर्की गया है, और सतनाम भाई। और वहां पर अगर आप जाते हैं तो इस इलाके में जो इफसुस के पास सारे इलाके हैं, आज भी वो कलीसियाएं मौजूद हैं। और हम जो 6ठी कलीसिया है, 5वीं कलीसिया है,
उसको स्टडी करेंगे। पांचवी कलीसिया को स्टडी करेंगे। और ये सार्दिस की कलीसिया जो थी, एक दिन एक वक्त में ये एक अमीर कलीसिया हुआ करती थी। और अमीर इसलिए थी क्योंकि लिडिया का नाम आपने सुना होगा। लिडिया की एक सल्तनत हुआ करती थी और इसी जगह पर वो सल्तनत थी। और यहां पर जो सोने के सिक्के फर्स्ट टाइम दुनिया में राइज हुए वो सार्दिस की कलीसिया से हुए। तो इसलिए हम देखते हैं इसका एक बड़ा नाम था इस कलीसिया का, लेकिन वक्त के हिसाब से अब इस दौर में वो नाम जहां पर यीशु मसीह ने बात की वो नाम नहीं था, पुरानी बातें थी। अब इनकी जो अहमियत है वो कम हो गई थी। और हम देखेंगे कि लोगों पर भी इनकी जिंदगी का असर वैसा ही रहा। तो हम पढ़ेंगे, पहली आयत को देखते हैं। ਸਾਰਦੀਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਿਖ, ਭਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 7 ਆਤਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਤੇ 7 ਤਾਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਮੁਰਦਾ। आमीन। तो यहां पर खुदावंद अपना तारुफ किस तरह से करवाता है? कहता है मैं जिसके पास खुदावंद की 7 रूहें हैं। तो खुदावंद की 7 रूहें मैंने पिछली दफा आपको बताया कि इल्म की रूह, हिकमत की रूह, दानाई की रूह, अगवाई की रूह, खुदा के खौफ की रूह। और इसी तरह ये 7 रूहें जो यशाया 11 बाब में हमें मिलती हैं, ये पहली और दूसरी आयत पढ़ के देखिए तो वो सारी रूहें किस पर थी? शिलवा पर, यीशु मसीह पर थी। तो वो कहता है कि 7 रूहें जो मेरे पास हैं, जो मेरे ऊपर आकर ठहरी हुई हैं, जो कि पवित्र आत्मा की हजूरी है, मामूरी है, वो मेरे ऊपर है। और फरिश्ते भी मेरे हाथ में हैं, खुदा के खादमीन भी मेरे हाथ में हैं। और जो आसमान पर जो फरिश्ते खुदा का मुंह देखते हैं वो भी मेरे हाथ में हैं। वो फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, कि तू कहता है कि मैं क्या हूं? मैं जिंदा कलीसिया हूं, मैं जिंदा कलीसिया हूं। तू ऐलान करता है लेकिन तू है मुर्दा। तो ये भी मेरे अजीजों लोगों में कलीसियाओं में आप देखते हैं, वो कहते हैं हम जिंदा हैं, हम अव्वल नंबर की कलीसिया हैं, लेकिन खुदावंद कहता है कि तुम मुर्दा हो। आगे देखेंगे, ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰ। तीसरी आयत तक पढ़ेंगे। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਕੋਈ नहीं पाए। हाँ, खुदावंद क्या कहता है कि तू जो काम करता है वो मेरी नजर में वो पूरे हैं नहीं, वो अधूरे हैं, वो नाकस हैं काम। तीसरी आयत, ਇਸ ਲਈ ਚੇਤੇ ਕਰ ਭਈ ਤੈਂ ਕਿਸ ਵਿਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਅਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰ। ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਲੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ मैं तेरे ऊपर ਕਿਹੜੀ ਘੜੀਆ ਪਵਾਂਗਾ। आमीन। तो फिर खुदावंद कहता है कि याद कर, पहली बातों को याद कर कि मैंने तुझे किस तरह से तालीम दी, शागिर्दों ने तुझे किस तरह से तालीम दी। और आज कहता है कि तू अपनी ही तालीम को लेकर उठ बैठा है और तू कलाम की बातों को भूल गया है। हालेलुया। इसलिए हम इन बातों को याद रखेंगे और अपने आप को, और खुदावंद कहता है कि जागता रह। आज जो हम कलीसिया में सो जाते हैं ना, तो याद रखें कि खुदावंद कहता है कि जागता रह। और अगर तू सो गया तो फिर मैं चोर की मानिंदा आऊंगा और फिर तुझे पता नहीं चलेगा कि मैं किस वक्त आ जाऊं और दुनिया का इंसाफ करने लगूं। फिर हम वो जो 5 बेवकूफ कुंवारियों की तरह थे ना, कि हम वो मछली लेकर चल तो पड़े लेकिन बाद में दुनिया की फिक्रें, सारा दिन हमने खपना है, आराम नहीं करना, जब चर्च का टाइम आना है तो साथ में ही सो जाना है। ये सोने की जगह नहीं है, ये जागने की जगह है, ये खुदा के कलाम को सुनने की जगह है। और याद रखें, अगर हम चर्च में आकर सो रहे हैं ना, तो फिर इब्लीस के हम हाथ के अंदर हैं, वो हमें कलाम नहीं सुनने देता।
तो इसलिए खुदावंद कहता है बस याद कर कि तूने किस तरह से तालीम पाई और सुनी थी, और कायम रह और तौबा कर, और अगर तू जागता ना रहेगा तो क्या करूंगा, मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि मैं किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम को जानना बड़ा जरूरी है। आगे हम पढ़ेंगे। ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਦਿਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਜਲੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰਨਗੇ। आमीन। क्योंकि ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਸੁਜੋਗ ਹਨ। हाँ, वो सुजोग हैं, वो इस लायक हैं। थोड़े से हाँ, इस कलीसिया के अंदर जो सारदीस की कलीसिया है, सारे ऐसे नहीं हैं कि सारे डेड हैं, कुछ हैं जो जिंदा हैं। और सब कलीसियाओं में मेरे हजूर, मेरे लोगों, ऐसा ही होता है मेरे बहन भाइयों, कि कुछ लोग जो हैं वो खुदावंद में मजबूत होते हैं और कुछ डेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर खुदावंद कहता है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी पोशाक अभी गंदी नहीं की, और मैं उन्हें सफेद जामा पहनाऊंगा, अपनी तरफ से जलाली बदन दूंगा, और वो मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं। और हम आगे देखेंगे। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਟਾਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ करार करांगा। आमीन आमीन। खुदावंद कहता है कि जो अड़े और खड़े रहे, मैं उसे क्या करूंगा, सफेद पोशाक पहनाऊंगा, और किताबे हयात में, जिंदगी की किताब में मैं उसका नाम हरगिज नहीं काटूंगा। और खुदावंद कहता है जो फरिश्ते मेरा मुंह हर वक्त देखते हैं, मैं उनके सामने उन लोगों का इकरार करूंगा। खुदावंद कहेगा हाँ, मैं हरिंदर को जानता हूं, हाँ मैं राजे से वाकिफ हूं, हाँ मैं रमेश को जानता हूं। खुदावंद कहेगा कि मैं जानता हूं, इन्होंने मेरी खिदमत की, इन्होंने रूह और सच्चाई से मुझे ढूंढा है। तो मेरे अजीजों, छठी आयत में खुदावंद क्या कहता है, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ ਭਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ये पैगाम मेरे अजीजों हमारे लिए है। क्या हम सारदिस की कलीसिया हैं? क्या हम वो हैं जो कहते हैं हाँ मैं जिंदा कलीसिया हूं, हाँ मैं लिविंग चर्च हूं, लेकिन खुदावंद कहता है कि तू मुर्दा है, क्योंकि मोहब्बत तो तेरे अंदर है नहीं। पाक रूह तू कहता है हम पाक रूह से भरे हुए हैं, लेकिन खुदावंद कहता है तू रूह को जानता ही नहीं कि वो क्या है। हालेलुया। रूह से तू वाकिफ नहीं, इसीलिए खुदावंद कहता है जिसके हाथ में खुदावंद की 7 रूहें हैं। पहले वो इसी तरह अपना तारुफ करवाता है, क्योंकि ये चर्च रूह से खाली था। ये चर्च रूह के नाम से तो वाकिफ था, लेकिन अंदर खाली था। आगे पढ़ेंगे। ਫਿਲਦਲਫੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਿਖ। हाँ, अगली कलीसिया कौन सी है? फिलदेल्फिया की कलीसिया। हमने अभी तक जो है वो 5 कलीसियाओं को पढ़ा, अभी छठी कलीसिया का हाल देखते हैं कि वो खुदावंद उनके बारे में क्या कहता है। और इससे पहले कि मैं अगली कलीसियाओं के बारे में हम पढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कलीसिया जो थी वो नक्शे के हिसाब से बड़ी अहम जगह पर थी, क्योंकि इधर को अगर आप जाते हैं किनारे पर इफसुस और स्मिर्ना और परगमस, ये समंदर के साथ लगते हैं, लेकिन इसकी हदें दूसरे मुल्कों के साथ लगती थी। फिलडेल्फिया की कलीसिया, इसका मतलब है कि यहां से दूसरे मुल्कों के अंदर जाना बड़ा आसान था। और यहां के लोग पता है क्या किया करते थे, क्योंकि ये उस वक्त ग्रीक कल्चर था, ग्रीक मजहब था, ग्रीक के 12 देवताओं का प्रचार किया जाता था। तो यहां पर इन लोगों के, ग्रीकियों के मिशनरीज होते थे जो दूसरे मुल्कों में जाते थे और अपने देवताओं का प्रचार किया करते थे। ठीक है, तो इस हवाले से इस कलीसिया को
इस जगह को बड़ी अहमियत हासिल थी, क्योंकि अपनी जगह की वजह से, अपने काम की वजह से और ट्रैवल की वजह से ये बड़े मशहूर थे। और यहाँ पर मसीहियों ने क्या सीखा वो हम देखते हैं। ਫਿਲਦਲਫੀਏ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਿਖ, ਭਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। आमीन। वो क्या आखता है? फिलदिल्फिया के फरिश्ते को खुदावन, फिलदिल्फिया के खादम को खुदावन क्या कहता है कि मैं कदूस और बरहक हूं, मैं वफादार और सच्चा हूं, और मेरे हाथ में क्या है? दाऊद की कुंजी है। दाऊद के साथ वादा था कि तेरी नस्ल में से एक आएगा जो तेरे तख्त पर बैठेगा और उसके तख्त का कभी खात्मा ना होगा। तो यहां पर वो कहता है मैं वो हूं, और सच्चा और बरहक जो कहलाता है मैं वो हूं। और हम आगे देखते हैं कि आगे खुदा का कलाम क्या कहता है। हम 8वीं आयत को पढ़ेंगे। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਬੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੇਖ, हाँ 9वीं आयत। ਵੇਖ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੋਚਰੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਈ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। आमीन आमीन। तो इस कलीसिया की जो खास बात है, खुदावंद कहता है कि मैंने तेरे लिए एक दरवाज़ा खोल दिया है, और जिसको मैं खोल देता हूं उसको कोई बंद नहीं कर सकता। तो मेरे अजीजों, फिलदिल्फिया की कलीसिया वो थी जो सच्ची और वफादार कलीसिया खुदावंद उनको कहता है। खुदावंद अपना तारुफ इस तरह से करवाता है कि मैं जो सच्चा और वफादार हूँ, मैं जो दाऊद की कुंजी रखता हूँ, और यही नाम वो इस कलीसिया को देता है और कहता है मैंने तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोला है। और ये दरवाज़ा क्या था? एवेंजलिज्म का दरवाज़ा था। फिलदिल्फिया की कलीसिया खुदा का पैगाम दूसरे लोगों तक पहुँचाने लगे। हालेलुया। इसलिए इनको खुदावंद कहता है कि मैं जो अबलीस के लोग हैं, जो मेरे नाम से कहलाते तो हैं लेकिन काम वो शैतान के करते हैं, मैं उनको तेरे पाँव में डाल दूंगा और उनको पता चलेगा कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं। फिर आगे खुदा एक वार्निंग भी, इनको तंबीह भी करता है, इनको सिखाता है, इनको आने वाले खतरे से बताता है। और वो क्या है? 10वीं और 11वीं आयत। ਤੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖ, ਅਤੇ ਐਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਮੁਕਟ ਲੈ ਜਾਵੇ। आमीन। तो खुदावंद कहता है कि जो दुनिया में मुसीबतें आने वाली हैं, और आप तैयार रहें। इस दुनिया जो खतरे की घंटियां जो बज रही हैं ना, रोज हमें एक नई खबर सुनने को मिलती है, तो याद रखें कि मुसीबतों का वक्त किसी भी वक्त, वो 7 साल का जो मुसीबतों का दौर है वो किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। तो इसलिए तैयार रहें। तो खुदावंद कहता है कि उस मुसीबत के दौर में मैं तेरी हिफाजत करूंगा। इस कलीसिया को खुदावंद कहता है। किस कलीसिया को? फिलदिल्फिया की कलीसिया को। ये कलीसिया जो है वो इसमें से खुदा को गलती नहीं निकाल रहा। तो मेरे अजीजों, हमें इस कलीसिया को फॉलो करना है। हालेलुया। जो पूरी पूरी खुदा की मर्जी के मुताबिक चल रही है। आगे देखेंगे खुदा इनके साथ एक वादा करता है, और वो वादा क्या है? ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੰਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਂਗਾ।
ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ ਭਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, खुदा कहता है कि मैं तुम्हें, अगर तुम मेरे नाम पर कायम रहते हो तो मैं तुम्हें अपने घर में नए यरूशलेम में एक पिलर की तरह बनाऊंगा। और किसी चीज का पिलर होना ये बड़ी मायने रखता है, अहमियत है। ये खुदाम कहता है तुझे नए यरूशलेम में एक खास मुकाम दिया जाएगा, और खुदाम कहता है मैं तुझे एक नया नाम दूंगा। आगे देखते हैं लौदीकिया की कलीसिया, आखिरी कलीसिया जो है उसको खुदावन किस तरह से उनके साथ बात करता है। और इस चर्च का जो नाम है इसको लूक वॉर्म, इसको कहा जाता है कि ये ना ठंडा है ना गर्म है। पंजाबी में क्या कहते हैं इसको? ना ठंडा है ना गर्म है। और मेरे अजीजों, लौदीकी की कलीसिया जो थी उस टाइम की बहुत अमीर कलीसिया होती थी। ये वो कलीसिया थी जो अमीर कलीसियाओं में, तरक्की पजीर, तरक्की याफ्ता कंट्रीज में, इलाकों में शामिल थे, क्योंकि बिजनेस के हवाले से, बैंकिंग के हवाले से, मेडिकल स्कूल के हवाले से ये इलाका जो था वो ख़ास माने रखता था। और जब दौलत आ जाए, जब शोहरत आ जाए, जब पैसा आ जाए तो एक चीज़ की कमी हो जाती है, और पता है वो क्या है? ईमान की कमी। वो लोग खुदावंद को अहमियत नहीं देते, वो अपने आप को कुछ समझते हैं। और खुदावंद इस कलीसिया को क्या पैगाम देता है? ਲਉਦੀਕੀਏ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਿਖ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਆਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਮੁੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਨਾ ਤੱਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਤੂੰ ਸੀਲ ਗਰਮ ਜੋ ਹੈ, ਨਾ ਤੱਤਾ ਨਾ ਠੰਡਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਲ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। हाँ, और ਤੂੰ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਦੁਖੀ, ਮੰਦਭਾਗੀ, ਕੰਗਾਲ, ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੱਲ ਲੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਲੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਾਲੇ ਪਾਵੇਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨੰਗੇਜ ਦੀ ਲੱਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਭਈ ਤੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਨਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਅਤੇ ਤਾੜਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਉਦਮੀ ਬਣ ਅਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਖੜਖੜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛਕੇਗਾ। आमीन, आमीन। जिसके कान हों वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो मेरे अजीजों, ये लोग कहते हैं कि अब हम अमीर हैं, अब इल्म हमारे पास है और अब हमें खुदा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खुदावंद कहता है कि तू नंगा है, तू कंगाल है और तू कमबख्त है, तो मेरे पास आ और आंखों में डालने के लिए सुरमा ले ताकि तू देख सके अपने आप को कि तू कौन है। ठीक है, तो इस कलीसिया को खुदावंद डांटता है। और एक पंजाबी का लफ्ज़ मुझे यहाँ पे मिला है, सेम गरम, सीध गरम। हाँ, ये लफ्ज़ सीध गरम है तू, सील गरम, ना तू ठंडा ना तू तत्ता, ना तू आधा ना तू पूरा, और क्या आपने देखा, ना तू अव्वल ना तू आखिर, तू दरमियान में है। और इस इलाके में क्या होता था कि सब कुछ तो था, लेकिन जो पानी के चश्मे थे वो यहाँ पर नहीं थे, और ये दूसरे इलाकों से पाइप के ज़रिए से ये पानी लेकर आते थे। और पाइप के ज़रिए जब पानी उन तक पहुँचता था तो ना वो गर्म होता था ना ठंडा, तो जैसा वो पानी पीते थे वैसे ही उनकी सरिश्त बन गई। और ये आखिरी कलीसिया है जिसको खुदावंद पैगाम देता है। तो मेरे अजीज़ों, जो मैं ख़ास बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ये 7 कलीसियाएँ जो है
7 कलीसियाएं उस वक्त भी थीं, लेकिन खुदा सिर्फ उस वक्त की कलीसिया से बात नहीं करता, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि मैं आज, कल, बल्कि अब तक यकसा हूं। मैं हमेशा, कल भी था, आज भी हूं और मैं रहूंगा भी। तो ये कलीसियाएं हमें एक हिस्ट्री भी बताती हैं, शुरू से 2000 साल पहले से लेकर यीशु मसीह कब आसमान पर गए। किसी साल का पता होगा आपको? किस साल? तकरीबन 33 में आमतौर पर जो ख्याल किया जाता है। 33 ईस्वी में खुदावंद आसमान पर चले गए और उस वक्त पाखरू आया और कलीसिया की इब्तिदा हुई। तो जो साल शायद आपको दूर से नज़र ना आए, लेकिन अगर वहाँ पर होता तो नज़र आता। 33 ईयर से लेकर 70 AD तक जो अपोस्टोलिक चर्च था वो उसका जिक्र आता है। और उसके बाद हम देखते हैं स्मरना की कलीसिया सन 70 से लेकर 312 तक उसका दौर है। और 312 में क्या हुआ? वाकया याद है क्या हुआ था? वहां पर जो कॉन्स्टेंटीन था, एम्परर था, वो मसीह को उसने कबूल कर लिया। और फिर हम देखते हैं उससे पहले मसीह की कलीसिया सताई जा रही थी, स्मरना की कलीसिया सताई जा रही थी, लेकिन जब बादशाह ने कबूल कर लिया 312 में, एम्परर ने, तो फिर मसीहों की मुसीबत खत्म हो गई। लेकिन एक खतरा आ गया उस कलीसिया में, पेरगमस में। फिर क्या हुआ? खुदा और दुनिया, खुदा, चर्च और जो रोमी निजाम उनकी जिंदगी में था, जो बुत थे, दोनों मिक्स हो गए। इसीलिए खुदावंद इनको पहले से आगाह कर रहा था कि क्या होगा। और फिर चौथे में हम देखते हैं सन 610 से लेकर 1054 तक का जो दौर है, कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये दौर जो करप्ट कलीसिया, मिडीवल टाइम का दौर कहलाता था। कलीसिया यहां पर करप्ट हो चुकी थी। और फिर हम देखते हैं कि इब्लीस जो है वो इन पर कब्जा करता है। और फिर हम देखते हैं सारदिस की कलीसिया, सारदिस की कलीसिया का टाइम जो है वो 1054 से लेकर 1517 तक का रहा, जो अपने आप को मसीह तो कहते रहे, लेकिन पाक रूह के बारे में कोई तालीम नहीं देते, ना उसके बारे में सिखाया जाता था। और फिर 1517 से लेके 1948 तक की जो कलीसिया है, उसको फिलाडेल्फिया की कलीसिया का टाइम पीरियड जो है वो कहा जाता है। और फिर 1948 से लेकर 2033 तक जो टाइम अभी जिस कलीसिया के अंदर हैं, उस कलीसिया को लौदीकिया की कलीसिया कहा जाता है। यानी हम वो लोग हैं जो नीम गरम है, सीम गरम, सील गरम, हम सील गरम हैं। चलो इस पे बाद में जिक्र करेंगे, सीत है कि सील है, लेकिन हम जो हैं वो ना ठंडे हैं ना गर्म हैं। तो मेरे अजीजों, हमें या तो गर्म होना है या बिल्कुल ठंडे हो जाना है। और याद रखें कि हमारे बदन भी जो हैं ये भी अपने आप में एक कलीसिया हैं। हालेलुया। खुदावंद क्या कहता है? तेरा दिल मेरी हैकल है। ये बदन जो है ये खुदावंद की हैकल है। और हमें अपने आप में भी एक कलीसिया रखना है। और हम अपने आप को देखेंगे कि क्या मैं वो कलीसिया हूं जिसकी पहली सी मोहब्बत ठंडी पड़ गई है? कि मैं वो कलीसिया हूं जो आज भी यीशु के नाम पर सताया जा रहा हूं, लेकिन मैं कायम और दायम हूं? कि मैं वो कलीसिया हूं जो आधा दुनिया में और आधा खुदा के साथ हूं? कि मैं वो कलीसिया हूं जो यीशु के नाम पर एक धब्बा है? आप अपने आप से पूछें कि क्या मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं जिंदा हूं लेकिन मैं है मुर्दा? कि क्या मैं सच्ची कलीसिया हूं? क्या मैं सच्चा खुदा का खादम हूं, वफादार खुदा का खादम हूं? कि क्या मैं वो कलीसिया हूं जिसको खुदा कहता है कि तू ना ठंडा है ना गर्म है, और मैं तुझे अपने मुंह से बाहर फेंकने वाला हूं? आज आपको पहचानना है अपने आप को कि मैं कौन हूं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मेरा ईमान है कि आज का पैगाम आप अपने दिल में
लिख कर जाएंगे और ये याद रखेंगे कि मैं कौन हूं, पहचानेंगे कि मैं कौन हूं, मैं कौन सी कलीसिया से मेरा ताल्लुक है। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे, आमीन।